Dear students, class 12th A and B, children and women in sports. Special consideration manners and the menstrual diffusion. As a matter of fact, the female participation in the field of the games and the sports has shown remarkable increase during so that the yester decides the change has been noticed not only in India but across the world. But on other hand, a large part of the population still has the opinion that sports and games are not directly linked to women. Women are not expected to be muscular, robust, aggressive, and dominate. Many people opine that women have different anatomical and psychological structures and the capacities which are not suitable as a sports activity. They even say that participants in sports leads to various problems during menstruation, pregnancy, and the menopause. In order to avoid the misconceptions, and the myth, let us study the relationship of this biological process and women participants in sports. वास्तव में पिछले दशकों के दौरान खेलकूद के क्षेत्र में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी या सहभागिता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। यह परिवर्तन केवल भारतवर्ष में ही नहीं देखा गया, अभी तो सारे संसार में देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या के काफ़ी बड़े भाग का यह विचार है कि खेलों का महिलाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। महिलाओं को मांसपेशियाँ होने, हट्टी कट्टी या हष्ट-पुष्ट होने, आक्रामक होने व हावी या प्रबल होने की आशा नहीं की जाती। अधिकतर व्यक्तियों का यह विचार है कि महिलाओं की शारीरिक व क्रियात्मक संरचना क्षमताएं काफ़ी भिन्न होती है, खेलकूद के क्षेत्र के लिए अनुकूल या सुविधाजनक नहीं होती। वे भी यह कहते हैं कि खेलों में भागीदारी प्रथम रजो दर्शन मासिक धर्म के दौरान अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। अतः हमें समस्याओं व खेलों में भागीदारी के संबंध के बारे में अध्ययन या सोच विचार करना चाहिए। Menarche Rajodarshan. Menarche is the first period of this mental bleeding that a young girl has. Menarche usually occurs approximately at the age of the 12. However, it can happen yearly as during 8 to 9 years of age as late as during 16 years of age. Women's is a reproductive system is a complex and the sensitive and psychological stress. Such type of stress is usually associated with conditions like delayed menarche, amenorrhea, etc. These problems are experienced by some women who are engaged in the sports activities. However, women with delayed menarche, the midst of the sports, such as gymnastics, these women who have early menarche have an advantage in sports such as swimming and rowing because they get more adipose tissue of adequate weight. प्रथम रोज दर्शन एक युवा लड़की का प्रथम काल या प्रथम मासिक धर्म होता है। यह प्रथम रोज दर्शन लगभग 12 वर्ष की आयु में होता है। हालांकि यह कम से कम 8 या 9 वर्ष की आयु में तथा अधिक से अधिक 16 वर्ष की आयु में घटित हो सकता है। महिलाओं का प्रजनन स्थान शरीर के क्रियात्मक दबाव के प्रति अत्यंत जटिल व संवेदनशील होता है। इस प्रकार के दबाव या तनाव में कुछ संबंधी अनियमितताएं जैसे प्रथम रोज दर्शन में देरी, मासिक धर्म में गड़बड़ी या विकार, एमेनोर्रहस आदि से जुड़ी होती है। ये समस्या अधिकतर प्राय उन महिलाओं के सामने आती है जो तीव्र खेल क्रियाओं में संलिप्त रहती है। हालांकि ऐसी महिला जिनको प्रथम रोज दर्शन में देरी व इसमें खेल में जिम्नास्टिक आदि से अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है। जिन महिलाओं के प्रथम रोज दर्शन जल्दी आ जाता है तो कुछ खेलों में जैसे तैराकी, रोइंग आदि में थोड़ा सा लाभ हो जाता है क्योंकि उनमें अधिक वसा वाले ऊतक मोर एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं, उनका उपयुक्त भार अधिक हो जाता है। मेंस्ट्रुअल डिफ्यूजन, मासिक धर्म में शिथिलता या विकार। Menstrual diffusion is a disorder of the irregularity of the woman's menstrual cycle. In other
Thus, it can be defined as an abdominal bleeding during the menstrual cycle. Normal menstrual cycle varies from 20 to 35. Its flow lasts approximately 7 days. Menstrual irregularities seem higher of women athletes in comparison to athletic women. मासिक धर्म में शिथिलता का अर्थ महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता या विकार। दूसरे शब्दों में इसको मासिक धर्म के दौरान एक असाधारण रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य मासिक चक्र या धर्म 21 से 35 दिनों का हो सकता है। इसका भाव लगभग 2 से 7 दिन तक हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। मासिक धर्म खेलों में सहभागिता है भागीदारी। Earlier, most of the people used to believe that the participation in the sports during menstruation could be psychological harmful. Studies conducted in this field show that there has been no basis or evidence of the demonstrated painful menstruation of any consequence as a result of the intensive participation in sports. In fact, these have been recent reports to indicate complete absence of the menstruation of women who usually get trained for long duration in running. However, it is not applicable or all the women sports personnel as in all the sports. Some studies indicate that sports participation is beneficial in relieving pain and preventing demonstration. Even research studies show that a small number of women participating in sports experience demonstrations in comparison in non-participants. From study also indicate that there is no specific effect on sports performance during all absence of the menstrual cycle, because international records have been set in all the stage of menstrual cycle. Research study also show that the woman's strength decrease in a few days period of the menstruation and the continuation remain is a slightly lower level throughout the menstrual period. In conclusion, can be said that there is no impediment, a barrier in the sports women to engage even in competitive sports, and days of the month menstruation is not a problem in the way of achieving top sports performance. पहले अधिकतर व्यक्ति यह विश्वास किया करते थे कि मासिक धर्म के दौरान खेलों में सहभागिता या भागीदारी शरीर क्रियात्मक रूप से हानिकारक हो सकती है। नवीन अध्ययन जो इस क्षेत्र में किए गए हैं, ये दर्शाते हैं कि तीव्र खेल भागीदारी या परिणाम स्वरूप कष्टदायक मासिक धर्म में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। वास्तव में इस क्षेत्र में नवीन स्पोर्ट्स यह दर्शाती है कि उन महिलाओं में मासिक धर्म की पूर्ण अनुपस्थिति नोट की गई थी जो लंबी अवधि की दौड़ का प्रशिक्षण ले रही है। हालांकि यह सभी महिला भागीदार खिलाड़ियों पर लागू नहीं होता या सभी खेलों में लागू नहीं होता। कुछ अनुसंधान अध्ययन यह बताते हैं कि खेलों में भागीदारी या सहभागिता दर्द से छुटकारा दिलाने, मासिक धर्म में गड़बड़ी या कष्टदायक मासिक धर्म से बचाव में सहायक होती है। कुछ अनुसंधान अध्ययन यह यहाँ तक कि दर्शाते हैं कि उन महिला खिलाड़ियों की काफ़ी संख्या कम है जो पीड़ादायक कष्टदायक मासिक धर्म अनुभव करती है अपेक्षाकृत उन महिलाओं से जो खेलों में भाग नहीं लेती। कुछ अध्ययन यह भी इंगित करते हैं कि मासिक धर्म की सभी अवस्थाओं में खेल प्रदर्शन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मासिक धर्म की सभी अवस्थाओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। अनुसंधान अध्ययन यह भी बताते हैं कि मासिक धर्म के पूर्व वाले कुछ दिनों में महिलाओं की शक्ति में कमी आ जाती है तथा सारे मासिक धर्म के समय थोड़ी सी शक्ति में कमी जारी रहती है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि महिला खिलाड़ी को महीने के किसी भी दिन प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में संलिप्त होने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या बाधा नहीं है। उच्च खेल प्रदर्शन का प्राप्त करने के रास्ते में मासिक धर्म कोई समस्या नहीं है।
Thank you, student.